Hello student, this is part 3rd of chapter number 6 of 9 science. Today's topic is complex permanent tissue. Simple permanent tissue we discussed. Now we will discuss complex permanent tissue. The different type of tissues we have discussed until now are all made up of one type of cell. अभी तक हमने जो भी tissues पढ़े उनमें सब में जो cells थे they all tissues have same type of cells. There are the same cluster of same type of cell which perform the same type of function. वहाँ पे क्या था कि एक टाइप के सेल एक टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है. बट नाउ इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यू विल सी there are more than one type of cell. The complex tissues are made up of more than one type of cell. Means जो complex permanent tissue हैं उनमें जो tissues cell से मिलके बनते हैं तो वो cells different होंगे structurally. सारे cells means एक से ज़्यादा type के cells वहाँ पे आपको मिलेंगे. They perform same function, but they have the different structure. So complex tissues are made up of more than one type of cell. All these cells coordinate to perform a common function. लेकिन वो function तो एक ही करते हैं. इससे पहले cells भी एक ही टाइप के थे और वो एक टाइप का function परफॉर्म करते थे. लेकिन अभी cells एक से ज़्यादा टाइप के हैं लेकिन वो अभी भी function एक टाइप का ही परफॉर्म करते हैं complex tissue के अंदर. तो जाइलम एंड फ्लोएम इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अगर जाइलम की बात करें, जाइलम कंसिस्ट ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. तो ये चार चीज़ें जाइलम का स्ट्रक्चर बनाती हैं. अगर डिटेल में इसकी बात करें तो ट्रैकेट are the dead cells which with sloping walls enclosed in a large empty cavity. So and they help in the conduction of water and minerals. From where? From roots to different part of the plant. Vertically वो क्या करते हैं, water और minerals को transport करते हैं. Now vessels are also dead, and it is a long tube like structure, and it also help in it is it resemble a series of pipe means pipes का formation करती है. It form a pipeline for transporting water and dissolved minerals. And they have hard and thick cell wall. Now, if you will discuss, you can see the images here. This is the vessels. This is the structure of vessel. Tracheids यहाँ देख सकते हैं आप लोग. Now the third type we have xylem parenchyma. You can see here. Xylem parenchyma consists of living parenchyma cells present in xylem. These cells stored food. Food means like sugar and starch, and they help literal conduction of water. तो ये literally क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करने में भी हेल्प करता है और फूड और शुगर को शुगर मीन्स फूड मीन्स शुगर और स्टार्च को स्टोर करने में भी हेल्प करता है प्लांट की. नाउ जाइलम fibers are you can say the lignified fibers present in the xylem.
तो जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं, लिग्निफाइड फाइबर्स आप कह सकते हैं, जो जाइलम में प्रेजेंट होते हैं. दीज फाइबर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी. Now we can move to next example. This is phloem. Example means example of complex permanent tissue. This is phloem. Phloem have the sieve tubes and companion cells and phloem parenchyma and phloem fibers. You can see here. सीव ट्यूब्स आप देख सकते हैं, कंपेनियन सेल्स आप देख रहे हैं, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा. यू कैन सी हियर. कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स and one another thing is phloem parenchyma. So phloem fibers and phloem parenchyma आप लोग देखेंगे. Now sieve tubes की अगर बात करें तो आपको देखेगा यहाँ पे इसमें न्यूक्लियस नहीं है, and the end of the wall of sievage tube are perforated. इसकी जो end हैं वो perforated होती हैं. इसमें क्या होता है, जब मैच्योरिटी आती है सेल्स के अंदर तो ये अपना न्यूक्लियस लूज कर जाता है. तो इससे क्या होता है, तो दिस दे गिव, इट इज़ ईजी एक्चुअली टू द न्यूट्रिएंट टू मूव थ्रू देम. उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को उसके थ्रू जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस उसमें है नहीं, तो वो ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सकता है न्यूक्लियस. अब क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है इस टाइम पे, इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फॉर दीज सेल्स इज टेकन अप बाय कंपेनियन सेल दैट आर सराउंडेड दीज सेल्स. आपने देखा होगा कंपेनियन सेल इसके जस्ट आफ्टर हैं, तो ये क्या करती हैं, इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का ध्यान रखती हैं. तो इसकी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो कंपेनियन सेल के थ्रू होती हैं इस टाइम के अंदर, जब ये न्यूक्लियस लूज कर जाता है. इसका फंक्शन, सेवेज ट्यूब आर द प्राइमरी कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द फ्लोएम टिश्यू. तो ये प्राइमरी कंडक्टिंग पार्ट है फ्लोएम का. इसके बाद आता है कंपेनियन सेल. कंपेनियन सेल का आपको जैसे कि एक फंक्शन आपको पता चल चुका है कि कंपेनियन सेल क्या करते हैं, सेवेज ट्यूब का मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म है उसको करते हैं. ठीक है. सो द कंपेनियन सेल डू नॉट लूज न्यूक्लियस इवन एट द मैच्योरिटी. तो ये कंपेनियन सेल कभी भी अपना न्यूक्लियस लूज नहीं करते हैं मैच्योरिटी में भी, क्योंकि अगर ये लूज कर जाएंगे तो फिर जो सेवेज ट्यूब है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो पाएंगी. इसके बाद आता है नेक्स्ट वी हैव द फ्लोएम पेरेन्काइमा. फ्लोएम पेरेन्काइमा आर ऑर्डिनरी लिविंग पेरेन्काइमा सेल्स एसोसिएटेड विद फ्लोएम. दे स्टोर फूड एंड हेल्प इन इट्स कंडक्शन. तो वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है. आफ्टर दिस फ्लोएम फाइबर्स आर थिक walled and elongated, so they are dead and they provide mechanical strength to the tissue. Now next topic we have is animal tissue. अब animal when we breathe we can actually feel the movement of our chest. हम जब क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो चेस्ट की का मूवमेंट हम फील कर सकते हैं. हाउ डू दीज पार्ट्स
body parts move. For this, we have specialized cell known as muscle cell. These muscle cells they contract and they relax. Contraction and relaxation of these cells result in movement. तो क्या करते हैं, सेल्स का मूवमेंट मीन्स मस्कुलर सेल्स का मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, तो उससे क्या होता है, मूवमेंट बनता है. Now you can see our body is made up of different organ system. Organ systems are made up of organs. Organs are made up of tissues, and tissues are made up of cells. So you can understand this here. We have a cell, and the cluster of cells form the tissue. Then tissue will form the organ. You can see the location of the muscle cell. In the stomach you can see there are the muscle cell. This is the structure of muscle cell. During breathing we inhale oxygen. Where does the oxygen go? It is absorbed in the lungs. वो क्या होती है, absorb हो जाती है lungs में, and then it transport to the body cells through the blood. उसके बाद blood के through वो transport हो जाती है body के each and every cell तक. Why would cells need oxygen? अब बात आती है कि सेल को ऑक्सीजन की नीड क्यों पड़ती है, हम डिस्कस कर चुके हैं सब. The function of mitochondria we studied earlier provide a clue to this question. हमको ये पता है ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें क्यों है, फॉर रेस्पिरेशन, फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट. ब्लड फ्लो and carry various substances from one part of the body to another part. For example, it carry oxygen and food to all cells. It also collect waste from all part of the body and carries these waste to the liver and kidneys for disposal. हम वो क्या करती है, मीन्स ऑक्सीजन और फूड को तो ब्लड कैरी करता है, इसके अलावा वो वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करता है और किडनी और लीवर तक वो लेके आता है. ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू. ब्लड में भी आपने देखा होगा, देयर आर डिफरेंट सेल्स, ब्लड सेल्स, कलेक्टिवली दे परफॉर्म अ फंक्शन, तो वो भी एक टिश्यू है. On the basis of the function they perform, we can think of different type of animal tissues. तो फंक्शन के हिसाब से हम डिफरेंट टाइप के, जैसे ब्लड एक फंक्शन कर रहा है वैसे ही अलग अलग फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं. मीन्स देयर आर मैनी टिश्यूज सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू. Blood is a type of connective tissue and muscles form muscular tissues. So these are the tissues we have to study in our next topic.